Hello children, you are welcome to this channel. Let us learn English. I am Anil Kumar. I am also a para teacher of Middle School Plamu, that's fall in Nawadi block and Boka district. My students, before this channel, I taught you English subject class 8 Kali and the Red Snake, first part and second part I am going to start. And before starting, as usual, I am going to say you the such person who have not subscribed this channel, please subscribe this channel and share it more and more in order that other students may get able. प्रिय छात्रों, आप देख रहे हैं लेट अस लर्न इंग्लिश और मैं हूं अनिल कुमार। मैं इस वीडियो के पूर्व क्लास 8 इंग्लिश सब्जेक्ट पाठ का नाम काली एंड द रेड स्नेक पहला भाग मैं पढ़ा चुका हूं और आज मैं दूसरा भाग बताने जा रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा जितना समय लगे दूसरा पार्ट में आज ख़त्म कर दूंगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी कर देंगे ताकि अन्य छात्रगण भी लाभ उठा सकें। तो चलिए अब मैं देर नहीं करता हूँ, अब मैं पहले आपको दिखाता हूँ। ये पाठ्य पुस्तक आप देख सकते हैं, ये झारखंड सरकार के द्वारा चलाई गई पुस्तक है, अर्थात सरकारी विद्यालय में चलाई जाती है। ये झारखंड के लिए है, झारखंड के विद्यालयों में ये पुस्तक चलती है। क्लास 8 की है, बार आप फिर से देख लें। और मैं जैसा कि मुझे याद है क्लास 8 का ये बुक, हाँ, और पेज नंबर 16 हो चुका है। पेज नंबर 16 ये देखें ख़त्म हो गया है, ये ख़त्म हो गया है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में अभी नहीं बताया हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले पाठ ख़त्म कर दूँ और क्वेश्चन आंसर मैं लास्ट में बताऊँगा। तो आज आप देखेंगे पेज नंबर 17, पेज नंबर 17 यहाँ से देखें, जस्ट सी मैं पढ़ाऊँगा, आप निकाल लें अपना टेक्स्ट बुक और देखें पेज नंबर 17, ठीक है। तो मैं पहले इंग्लिश पढ़ देता हूँ और इसके बाद हिंदी में बता दूंगा। काली एंड द रेड स्नेक, ठीक है। प्रिय बच्चों, आप भी अपना इंग्लिश बुक निकालें और आप भी हो सके तो पढ़ें, अच्छा रहेगा। Just then, something happened in the room. At first, Kali didn't understand it. Arms and legs flew, bodies ran, tumbled over each other, fell, ran some more. There were shouts from all directions. Help! Help! Teacher! Help! But the teacher was under his table. Eyes and hands pointed to the ceiling. Now Kali understood. There on the roof was a large red snake. It must have smelled rats on the roof tiles and come after them. By mistake, it had taken the wrong turn and come into the class instead.
Kali's father said that sometimes snakes smelled humans and mistook them for rats. Maybe this one thought, wonderful, here is a room full of rats. The rat snake was wrapped around a palmyra sorry, palmyra beam on the roof. It stretched out its neck curiously. It must have been surprised by all the excitement. Slowly, more and more of its body uncoiled from the beam. Kali, looking up, knew what was going to happen next, and it did. Dhup! Down fell the rat snake. The noise and confusion grew worse. Chairs crashed, hats banged, bodies hit the wall, the floor one another. Teacher was now on, not under his table, yelling, "Save me, save me." The rat snake was terrified. It went to one side of the room, then the other. The children ran in the opposite direction. For a few seconds, Kali was too surprised to do anything. His people, the Irulas, always went towards snake, not away from them. Had everyone gone mad? He walked slowly to where the snake was. He reached out his hand. Suddenly, the room grew still. No sound, no movement. All eyes were on Kali. The rat snake, it was over 2 meters long, reared back like a horse, opened its mouth wide, hissed and struck. Luckily, it missed Kali's hand. The bite of a big rat snake is very painful. This was the thought that went through Kali's mind as he grabbed the snake behind the head. His other hand gripped the long muscular body. Soon Kali was all wrapped up in a snake. Kali thought he would find a big bag to put the rat snake in. He had taken it some to father the Vandalur Zoo near Chennai would pay a good price for rat snakes. He had he would buy his baby sister a new dress, but what was this noise? What was happening? Was there another snake in the room? Confused, Kali looked up. Everyone was clapping and cheering, and then they were chanting, Kali Nand Ri, Kali Nand Ri, Kali, thank you. It was so wonderful. Kali's eyes became wet with happiness. He grinned and the clapping grew louder. You saved us, shouted one of the boys. How brave you are. From now on, you sit next to me. No, me. And the children stared, quarreling about whom Kali would sit next to. Who taught you to be so brave? Asked Ramesh. The class bully, come on, name it. We will give you whatever you want. Well, what I want now, replied Kali, is a big one to put this fellow into. 10 children ran off in 10 different directions to find bags. The others looked at Kali with admiration from the corner of his eyes. Kali saw the teacher climb down from his desk. The teacher walked up to Kali, but he was careful not to get too close. Silly children, he scolded. Why did you get so scared? Running all over the place
just because of a non-poisonous snake. The teacher walked back to his desk as soon as his back was turned. Kali and the children grinned at one another, sacred grins, the kind that friends used. आप देखें, यूज तक मैं बता दिया यहाँ पे, यहाँ तक देखें। अब इसका मैं हिंदी बता देता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जस्ट देन, तभी कमरे में, जस्ट देन समथिंग हैपेंड इन द रूम, तभी कमरे में कुछ घटना घटी, अर्थात कुछ हुआ। At first, Kali didn't understand it. Arms and legs flew. पहले तो काली कुछ समझ ना सका। बाहें तथा पैर उड़ने लगे, शरीर दौड़ने लगा, सभी एक दूसरे पर लुढ़कने लगे। हर तरफ शोर मचा हुआ था, बचाओ बचाओ सर बचाओ। लेकिन शिक्षक तो अपने टेबल के नीचे घुसा हुआ था, डर से, सांप के डर से। आंखें तथा हाथ कमरे की छत की ओर उठे हुए थे। अब काली समझ गया था, छत पर एक बड़ा सा चूहे खाने वाला सांप था। जरूर इसने छत की टाइलों में चूहों की गंध सूंघ ली होगी और उन्हीं के लिए आया होगा। सांप छत के ऊपर में था, चूहों का गंध सुना होगा और उसी गंध से वह नीचे क्लासरूम में आ गया, ऊपर में छत में, सीलिंग में आ गया। लेकिन गलती से यह गलत जगह पर मुड़ गया और कक्षा में आ गया। जाना था कहीं और सांप को, लेकिन आ गया कक्षा में। काली के पिता ने कहा था कि सांप कभी कभी आदमी की गंध को चूहे की गंध समझकर समझ लेते हैं। लगता है कि इस सांप को भी ऐसा ही लगा होगा और चूहों से भरा हुआ कमरा को छोड़कर आदमी के कमरा में आ गया। तो सांप कमरे की छत पर स्थित ताड़ के पेड़ की मोटी लकड़ी पर लिपटा हुआ था। बीम जो बना हुआ था क्लास में, वो उसी में लिपट गया। सांप ने अपनी गर्दन विचित्र ढंग से ऊपर उठाई। यह अवश्य इस कौतूहल के कारण हैरान हो रहा था सभी बच्चे। धीरे धीरे बिंब पर से इसके शरीर की कुंडलियां शरीर की कुंडलियां खुलने लगी। काली ऊपर देखकर तुरंत समझ गया कि आगे क्या होने वाला है, और वैसा ही हुआ। एंड डिड इट, ऐसा ही हुआ। सांप धप की आवाज से नीचे गिरा। कक्षा में शोर और आपाधापी से एकदम पूरा वातावरण फैल गया। हो हल्ला होने लगा, बचाओ बचाओ। कुर्सियां टूटने लगी, यानी बच्चे इधर तो दौड़ने लगे। कुर्सी को देखा नहीं, कुर्सी इधर गिरने लगा, उधर गिरने लगा, टूटने लगा। आपस में बच्चों का सिर टकराने लगा भागने के क्रम में। शरीर दीवार से टकराने लगा, एक बच्चे दूसरे बच्चे से टकराने लगे। अब शिक्षक के टेबल के नीचे नहीं बल्कि अब ऊपर हो गया डर से, क्योंकि सांप नीचे गिर गया था। डर से वह ऊपर आ गया टेबल के ऊपर और चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। तो सांप भी घबराया हुआ था। ऐसी बात नहीं कि सांप इतना आदमी देख करके वो निडर होगा, नहीं, वह भी डरा हुआ था। वह कमरे के एक तरफ भागा, दूसरी तरफ भागा। बच्चे भी दूसरी तरफ भागने लगे। तो काली को कुछ सेकंड तक तो समझ में नहीं आया कि हम करें तो करें क्या। लेकिन तब उसको ध्यान आया कि यूरोला जाति के लोग जो है हमेशा सांपों की तरफ ही जाते हैं, उसे दूर नहीं भागते हैं। तो सभी लोग भाग रहे थे तो सोच रहा था क्या सब पागल हो गया है क्या। वह धीरे धीरे सांप की ओर बढ़ने लगा। कौन? काली। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया सांप की तरफ। एकाएक सारा कमरा स्थिर हो गया। अर्थात जब काली हिम्मत किया सांप को पकड़ने के लिए
तो बच्चा लोग का डर कुछ कम हो गया, सब खड़ा हो गया देखने के लिए। देखे अब क्या होता है। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, सारा माहौल शांत हो गया देखने के लिए कि अब क्या होगा। सबकी निगाहें काली की तरफ थी, होना ही स्वाभाविक है। इतने छात्रों के बीच किसी की हिम्मत नहीं, मात्र काली हिम्मत किया। निश्चय ही सबका ध्यान तो काली तरफ जाएगा ही। उस 2 मीटर लंबे सांप ने घोड़े की तरह अपने शरीर को ऊपर उठाया, आप समझ गए होंगे, अपना मुंह खोला, फुफकारा और काली पर हमला किया। काली पर, क्योंकि काली उसे पकड़ने जा रहा था। भाग्य से सांप का जो निशाना जो था काली के हाथ पर था, लेकिन चूक गया, काली को नहीं डस सका। तो चूहे खाने वाले बड़े सांप को काटने से बड़ी पीड़ा होती है। अर्थात जो सांप चूहा खाता है, वो सांप अगर इंसान को काट ले तो बहुत पीड़ा होती है, जलन होती है, कष्ट होता है। यह विचार काली के दिमाग में उस समय आया जब उसने सांप को उसके सिर के पीछे से पकड़ लिया। सांप को सिर के पीछे से पकड़ लिया। अपने दूसरे हाथ से सांप के लंबे मांसल शरीर को पकड़ लिया। अर्थात एक हाथ से सांप का मुंडी पकड़ा, एक हाथ से पूंछ को पकड़ लिया। आपको ऐसा ट्राई नहीं करना है बच्चे लोग, ये काम आपको नहीं करनी है। आप कहानी को ध्यान से सुनेंगे और ये हरकत आप लोगों को नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब क्या हुआ, शीघ्र ही काली का पूरा ध्यान सांप पर केंद्रित हो चुका था। काली सांप को पकड़ लिया था और उसका ध्यान रूम पर नहीं बल्कि सांप पर था। काली ने सोचा कि जब एक बड़ा बैग मिल जाए तो सांप को हम उस बैग में हम कैद कर देंगे, बंद कर देंगे। तो वह उसको अपने क्या हुआ घर के पिताजी के पास ले जाएगा और दिखाएंगे। तो चेन्नई के करीब स्थित वडलूर चिड़ियाघर जो है, वहाँ चूहा और सांप का अच्छा दाम देता है। वहाँ चिड़ियाघर है, वहाँ सांपों को ले जाने से पैसा मिलता है। वह अपनी छोटी बहन के लिए नए कपड़े खरीदेगा, क्योंकि वह गरीब था तो उसका कमाई भी वही था, सांप पकड़ना बेचना। तो वह सोच लिया कि अगर सांप को बेचेंगे तो अपना बहन के लिए हम नया कपड़ा खरीद लेंगे। लेकिन यह शोर कैसा था, क्या हो रहा था, क्या कमरे में कोई और सांप था? उसका असमंजस बढ़ गया और ऊपर की ओर देखने लगा। तभी सभी तालियां बजा रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे। किसकी? काली की। और वे उसका नाम लेकर कह रहे थे, काली बहादुर है, काली बहादुर है, काली तुम्हारा धन्यवाद। सभी बताए थे काली नंदरित बताए थे, तो वो क्या होगा, काली बहादुर है, काली तुम्हारा धन्यवाद। वह सब बहुत आश्चर्यजनक था। काली की आंखें खुली रह गई, आंखें नम हो गई। वह मुस्कुराया और तालियों की आवाज और तेज होने लगी। ताली उसके स्वागत के लिए सभी लड़के बजाने लगे। वह बहुत खुश हो गया। तुमने हमें बचा लिया। सभी बच्चों ने उनका धन्यवाद दिया कि आज तुम नहीं होते तो शायद आज किसी न किसी को डस लेता, कितने लड़के वो घायल हो जाते या मर जाते। आज तुमने हमारा जीवन को बचा लिया। लड़कों में से कोई चिल्लाया, कोई लड़का में से बोले चिल्लाया कि तुम कितने बहादुर हो, तुम अभी से मेरे पास बैठोगे। पहले वो सोचता था कि मेरा कोई यहाँ दोस्त नहीं होगा, लेकिन अब वैसी बात नहीं है। अब उसके साथ बैठाने वाला भी मित्र मिल गया। कोई बोलता नहीं मेरे पास बैठेगा, इस तरह से वहाँ हुड़दंग मच गया। नहीं, काली मेरे साथ बैठेगा, काली मेरे साथ पास बैठेगा। अब काली का बहुत मित्र हो गया और बच्चों ने इस बात पर झगड़ना शुरू कर दिया कि काली किसके पास बैठेगा। तुम्हें इतना बहादुर बनना किसने सिखाया? कक्षा के सबसे शरारती बालक रमेश ने पूछा। क्लास में सबसे शरारती बच्चा कौन था? रमेश। वह पूछ बैठा कि तुम इतना बहादुर कैसे हुआ? सांप को तुम कैसे पकड़ लेते हो? सही बात है, सांप को देखने के बाद अच्छे अच्छे लोग भाग जाते हैं, मैं भी उनमें से हूँ।
मैं सांप देख लूँ तो मैं भाग जाता हूँ। मेरे घर में भी कई बार सांप घुसा है, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं कि सांप को मैं निकालूं। दूसरों को बुलाना पड़ता है, यार आप मेरे घर आओ, सांप घुस गया, निकालो निकालो निकालो। जब सांप को निकालता है तब चैन मिलता है। तो आओ, नाम बताओ, तुम जो कुछ भी चाहते हो हम तुम्हें देंगे। कौन बोला? रमेश। अब दोस्तीकारों से पूछ रहा है तुम्हारा नाम क्या है, बताओ। तुम जो कुछ भी चाहोगे हम तुम्हें देंगे। अच्छा, तो अब मुझे एक बैग चाहिए, एक बड़ा बैग, एक इस सांप को उसमें बंद करने के लिए। देखिए वहां बैग मांग रहा है, बैग बोरा जो मिल जाए। इतना बड़ा सांप को क्या करना है? उसको भर के ले जाना था उसको। ठीक है। 10 बच्चे बैग ढूंढने के लिए 10 अलग अलग दिशाओं में भागे। बाकी सबने प्रशंसा से काली को देखा। कुछ बच्चे चले गए बैग लाने के लिए, और कुछ बच्चे जो है काली की तरफ अभी तक देख ही रहा था, बड़ा प्रशंसा के दृष्टि से देख रहा था। तो काली ने अपने आंख के कोने से देखा कि शिक्षक डेस्क के नीचे उतर चुका। यानी कि जब वो देखा, अचानक उनका नज़र पड़ता है अपना शिक्षक की ओर, तो वह कुर्सी से, टेबल से, जहाँ भी खड़े थे वो उतर चुके थे, क्योंकि सांप पकड़ा गया था। अब डर खत्म। तो शिक्षक काली के पास आ गया था, पर वह सावधान था, ज़्यादा नज़दीक नहीं आया था, क्योंकि उसके पास सांप था। कैसे आएगा उसके पास? उसने बच्चों को डांटा। मतलब मूर्ख बच्चे, तुम लोग इतना घबरा क्यों गए हो? इधर उधर भाग रहे थे, वह भी बिना जहर वाले सांप से डर कर। अब देखिए सर क्या बोल रहे हैं, आपने तो खुद भाग रहे थे, खड़ा हो गए थे कहाँ? टेबल पर। अब डांट रहे हैं बच्चों को कि बिना जहर वाला सांप को देखकर तुम लोग क्यों भाग रहा था, और खुद खड़े हो गए थे टेबल पर। तो शिक्षक जो है वापस अपने डेस्क में जो भी है उसकी तरफ आने लगे, और जैसे ही वह मुड़ा, एज सुन एज हिज बैक वाज टर्न, और जैसे ही वह मुड़ा, काली एंड द चिल्ड्रेन ग्रीन एट वन अनदर सेक्रेट ग्रीन्स द काइंड दैट फ्रेंड्स यूज्ड। तो जैसे ही वह मुड़ा, काली तथा बाकी बच्चे एक दूसरे की तरफ मुस्कुराने लगे। गुप्त मुस्कान। कैसा मुस्कान? गुप्त मुस्कान, और जिसका वही इस्तेमाल दोस्त लोग करते हैं। तो आपने देखा ये पार्ट बिल्कुल ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, यहाँ तक मैं बता दिया। अब मैं दूसरा दिन क्वेश्चन आंसर बनाऊंगा। प्रिय छात्रों, सच मैं बताऊं, मुझे समय नहीं मिलता है, मैं दिन भर व्यस्त रहता हूं मेरे प्रिय छात्रों, इसलिए मैं रोज़ वीडियो बना नहीं पाता हूं, समय नहीं मिलता है। फिर भी मैं आपके लिए समय निकालता हूं। प्लीज़ कृपया आप पढ़ें ध्यान लगाकर। मैं आपके लिए कष्ट करता हूं, आपके लिए मेहनत करता हूं। सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करें। चाहे आप शिक्षक देख रहे हों, आप अभिभावक देख रहे हों, आप स्टूडेंट्स देख रहे हों, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चे छूट गए हैं, स्कूल तो बंद है, आप जान रहे हैं, साल भर से बच्चे इधर उधर गड़बड़ा गए हैं। प्लीज़ बच्चों पर ध्यान दें। मैं अभिभावकों से कहूँगा, माता पिताओं को बोलूँगा बच्चों के, प्लीज़ थोड़ा सा आप ध्यान दें। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ बस आपके बच्चे के लिए, मैं पैसा नहीं मांग रहा हूँ। बस सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। मैं पुनः दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका रात्रि शुभ हो।